کہ آج بیرا شریف میں تحریک انصاف کے بہت سے سینئر صاحبان، جس میں ہمارے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب، ہمارے فواد چودھری صاحب، ہمارے پیر نور الحق قادری صاحب، ہمارے جو ریجنل پریزیڈنٹ ہیں عامر کیانی صاحب، ہم سب یہاں آج جمع ہیں خوش آمدید کہنے کے لیے ضلع سرگودا اور اس خطے کی ایک نامور شخصیت اور گھرانے کو جو آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ کے بہت سے حوالے ہیں، دینی حوالہ ہے اور میں اس کو اولیت اور ترجیح دوں گا کیونکہ میرا اس خاندان کے ساتھ آج کا نہیں عرصہ دراز سے ایک روحانی اور قلبی رشتہ تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ امین الاسناد صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں، اکٹھے وقت گزارا ہے، اور آج ان کے خاندان کی شمولیت سے ضلع سرگودا میں اور اس پورے ریجن میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک وسیع حلقہ احباب ہے، اس سے تحریک انصاف کو تقویت ملے گی۔ یہ ایک حسین امتزاج ہے، ان کا ایک دینی حوالہ بھی ہے اور ان کا ایک سیاسی حوالہ بھی ہے۔ اگر ان کی دینی خدمات کا ذکر کیا جائے تو وہ اندرون ملک اور پاکستان سے باہر بہت سی ان کی نمایاں جو خدمات ہیں جن کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ الحمدللہ آج جب مجھے آج سے غالباً ایک دہائی پہلے ایک مدرسے میں آنے کی عزت بخشی گئی، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مدرسے کو یونیورسٹی کا چارٹر مل گیا ہے۔ تو یہ ہے وسعت ان کی دینی خدمات کی۔ جہاں تک سیاسی حوالہ ہے، سب جانتے ہیں کہ ان کا ایک طویل سیاسی سفر ہے اور عزت والا نام ہے، عزت والا نام ہے۔ لوگ انہیں پہچانتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، عقیدت بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں۔ تو میں آج انہیں خوش آمدید کہنے آیا ہوں اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ ان کی شمولیت سے تحریک انصاف انشاءاللہ اس علاقے میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو میں امین الاسناد صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں جی تحریک انصاف کے قافلے کے اندر، اور میرے خیال میں اس بات میں شاید اب کوئی شک باقی نہیں ہے اور تمام لوگ اس بات کو مانیں گے کہ اگر پاکستان کی سیاست میں کوئی لیڈر ہے جو حقیقتاً ایک عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمران خان ہے۔ اور جو انہوں نے خدمات حرمت رسول کے لیے صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے اندر جس طریقے سے مقدمہ لڑا ہے، تو ہر مسلمان جو ہے اس کا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ اور اس لیے جو بھی لوگ جو عقیدے میں یقین رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان کی اولین ترجیح ہے، ان کے لیے جو منطقی لیڈر بنتا ہے جس کے ساتھ وہ مل کر کام کریں ملک کی بہتری کے لیے، تو وہ عمران خان ہے۔ تو پیر صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے آنے سے اس علاقے کے اندر تحریک انصاف مضبوط ہوگی، اور جو ایک خاص طور پہ جس وقت پہ آپ شامل ہوئے ہیں جب ایک ملک کے اندر تاریخ ساز تحریک چل رہی ہے، ایک ایسی تحریک چل رہی ہے کہ واقعی میں پاکستان کو وہ ملک بنایا جائے جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا، جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جستجو کی، اس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا،
وہ پاکستان ایک حقیقی طور پر آزاد پاکستان بننے کے لیے جا رہا ہے، ایک مدینے کی ریاست کے اصولوں پر مبنی پاکستان بننا چاہ رہا ہے. تو اس تحریک میں اس وقت آپ کی شمولیت جو ہے وہ خاص اہمیت رکھتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ساتھ مل کر کام کر کے اس علاقے کے بھی اور پورے پاکستان کے لیے بھی بہتری کے لیے ہم آپ کے ساتھ سفر جاری رکھیں گے. ادھر کر دیں، یہ ایک سیکنڈ، یہ آپ بات کریں. میں ادھر ہی پیسب کو نہیں، پہلے پیسب آپ پلین پہلے پیسب کو کریں. آپ تھوڑی بات پیسب آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے. چلے ہم دعا کریں. اچھا تھوڑا اور آ جاتا کر لیتے سارے آگے کر لیتے ہیں انشاءاللہ. آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج یہاں پر جو دربار عالیہ بحیرہ شریف نے آج تحریک انصاف میں جو شمولیت کا اعلان کیا ہے، میں اس کے اوپر پیر صاحب کا، امین الاسناد صاحب کا، پیر فاروق صاحب کا اور تمام برادران کا اور جو فیملی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جو بحیرہ شریف کی تاریخ ہے یہ کہ چھپی ہوئی نہیں ہے. جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس بر صغیر پاک و ہند میں پھر اس وقت ہمارے جو اضلاع ہے، جیلم ہے اور راولپنڈی ڈویژن ہے، سرگودا ہے، یہ سارے تو ہیں ہی، لیکن ان کے جو معتقدین ہیں وہ اوورسیز تک پھیلے ہوئے ہیں. اور جو ان کا ایک کردار رہا ہے تحریک پاکستان میں 1906 سے، یہ جو فیملی ہے، یہ جو خاندان ہے، یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا رہا ہے ہندوستان کی سیاست میں اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں. اور پیر محسن شاہ صاحب بھی میرا خیال ہے یہیں پہ ہیں، اور تمام لوگوں نے یہ جو خاندان ہے، ہم لوگ تو وسیلے والے لوگ ہیں، ہم تو وسیلہ مان کے چلنے والے لوگ ہیں. اور جس طریقے سے یہ آج خاندان شامل ہوا ہے تحریک انصاف میں، یہ اس امر کا بھی ثبوت ہے کہ عمران خان کی جو قیادت ہے، یہ بات سب کے سامنے ہے. جس طرح سے عمران خان نے پاکستان کے اندر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے اور جو یہاں پہ اسلام کے لیے جو عالمی خدمات سر انجام دیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہیں، یہ وزیر خارجہ تھے. وہ جو یونائٹڈ نیشنز میں تقریر جو عمران خان نے کی، اس کے بعد ہمارے فورن آفس نے جو شاہ محمود قریشی صاحب کی سرکردگی میں جس طریقے سے عالمی سطح کے اوپر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ اٹھایا، وہ آپ کے سامنے ہے. اور میں آپ کو بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی رگ رگ میں جو عشق رسول کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو ایک فلسفہ ہے، وہ عمران خان کی رگ رگ میں ہے اور ہر مسلمان کی رگ رگ میں ہے. لیکن لیڈرشپ کی طرف سے عالم اسلام کی جو لیڈرشپ عمران خان نے اس سلسلے میں کی، اس کی مثال نہیں ملتی. اور آج یہ پاکستان کے فورن آفس کی وجہ سے، عمران خان کی لیڈرشپ کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ آج دنیا جو ہے وہ اسلامو فوبیا کے خلاف ایک پورا دن مناتی ہے. اقوام متحدہ نے اس کو اپروو کیا. اس خطے کی سیاست میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی عامر کینی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ جو نارتھ پنجاب ہے، یہاں پہ تو نون لیگ کا ویسے ہی صفایا ہو چکا تھا، لیکن جو راہ سے جڑی رہی سے کسر سی وہ آج پوری ہو گئی ہے. انشاءاللہ پیر فاروق شاہ صاحب نے، اور میرا بہت احترام کا تعلق ہے اس خاندان سے، بڑا پرانا تعلق ہے. جب یہ نون میں بھی تھے، اسی تے گوڈے گٹے نو ہاتھ لوا کے اپنا کام کاری لیندے سے. لیکن یہ ہے کہ اب تو ہمارے فلسفے، ہمارے قافلے کا حصہ ہیں، ہمارے یہ محترم جو سارے بزرگ ہیں، یہ آگے اس معاملے کو لے کے چلیں گے. اور سرگودا میں تو آج میرا خیال ہے عملی طور پہ نون لیگ ختم ہو گئی ہے اس فیصلے سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے نارتھ پنجاب میں اور ادھر جو ہے جو اثرات آئیں گے وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. پھر اس میں یہاں پہ جو تعلیم کے لیے مدارس کے نیٹ ورک کا جو سلسلہ جو پیر صاحب نے، پیر کرم اللہ شاہ صاحب نے، اور پھر بعد میں امین الحسنات صاحب نے جس طریقے سے اس کو بڑھایا، اور جو تعلیمی خدمات ہیں وہ تو اس کے لیے ایک علیحدہ پورا چیپٹر درکار ہے.
जिस किस्म के यहाँ पे किया, और फिर जो मॉडर्न एजुकेशन और मदरसा एजुकेशन को जिस तरीके से इन्होंने आगे बढ़ाया, वो भी उसकी आपके सामने है जो खिदमात है। और पूरे इलाके में सबसे बड़ा मदरसों का जो मॉडर्न मदरसों का नेटवर्क है वो इस भेरा की जो ख़ानदान है, जो गद्दी है, इसको ये जाता है क्रेडिट। तो मैं एक तो तमाम जो आज यहाँ पे आप मुझे बताया था, पीर फारूक साहब कह रहे थे कि हमने जलसे का इंतज़ाम नहीं किया था, सिर्फ मीडिया का इंतज़ाम किया था, लेकिन बाहर तो जलसा हो ही गया है। सैकड़ों लोग जो है माशाल्लाह यहाँ पे आए हैं, और यही एक फजीलत है और एक कुदरत है। इंशाअल्लाह ताला हम आपको इस पार्टी में खुशामदीद कहते हैं। सारी लीडरशिप जो है वो आपके पहले ही जो है हम आपके मुतक़िदीन में शामिल हैं, हम आपको साथ लेके चलने हैं। और आज हमारी सारी मेन लीडरशिप भी आपके पास जो है वो आई है, और इंशाअल्लाह आपके मशवरे से, आपकी सलाह से इंशाअल्लाह इस इलाके की सियासत को जो रुख मिलेगा वो इंशाअल्लाह आप देखेंगे तहरीक इंसाफ की कामयाबी होगी। और दूसरी बात ये है जी, देखिए पाकिस्तान के अंदर ये जो हालात हैं, इसमें इलेक्शंस के अलावा कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान में आप जो मर्जी कर लें, मईशत नहीं ठीक हो सकती जब तक सियासत ठीक ना हो। पहले आप सियासत ठीक करें, फिर मईशत ठीक होगी। और इसीलिए हम बार बार तवज्जो दिला रहे हैं। आज जो आम आदमी की हालत है, जिस तरीके से आज आम आदमी की कमर टूट गई है, किचन का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है, ये इस वजह से है। आज से 9 महीने पहले तो ये हालात नहीं थे। यहाँ पे बंद कमरों के जो फैसले हैं, उनके नतीजे में पाकिस्तान में एक रोबा जवाल हुआ, पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अबतरी पैदा हुई। अब इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, और अब हमारे आपने देखा ही है कि इस्तीफे कल जिस तरीके से मंजूर हुए, जनाब परवेज अशरफ साहब ने, उन्होंने अपने कमरे के अंदर सुरंग बनाई हुई है। जब भी हम इस्तीफे लेके जाते हैं वो सुरंग से बाहर निकल जाते थे। अब कल इंशाअल्लाह उनको ये इलाज हुआ है। इस वक्त 64% पाकिस्तान में जो नशिस्तें हैं वो खाली हो चुकी हैं, बाकी 36% रह गई हैं। उनके ऊपर इलेक्शन जो है वो कराना लाजमी है, और इलेक्शन के बगैर मईशत जो है वो ठीक नहीं हो सकती। इसलिए इंशाअल्लाह हम जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और इस खत्ते के नतायज आपके सामने होंगे। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, मीडिया से करने जी जी। शाह साहब, सवाल ये है मेरा, एक पीर साहब दुआ करा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरे पास जो इतने मुअक्कर और मोहतरम बुजुर्ग तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन्हें खुशामदीद कहूँ और अपनी आंखों और दिल पे बैठा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ साहबजादा नूरुल्लाह कादरी साहब का, जो जिनसे मेरी मोहब्बत का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जब हमारे मामलात जिस भी हवाले से होते थे तो वो हमेशा हमारा हाथ पकड़ के चलते रहे। आज भी हमने अपना हाथ उन्हीं के हाथ में दिया है। मेरा पीर खाना सियाल शरीफ है, वो काफ़ी अरसे से उनका पीटीआई के साथ ताल्लुक है। हमें भी हुक्म फरमाते थे, लेकिन चूँकि पहले एक जमात के साथ बड़ा पुराना रिश्ता था, उस वक्त हम उस हुक्म की तामील नहीं कर पाए। आज हम उस हुक्म की तामील कर रहे हैं। मैं ये भी गुजारिश करूं कि वक्त गुजरता है ना, असबाब पैदा होते रहते हैं और फिर कोई चीज़ है जो है वो सामने आती है। मैं अपने दाएं बाएं बैठने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जनाब मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब, ये हमारे ख़ानदान के सरबराह हैं और ये हमें अज़हद एहतराम है इनका हमारे ख़ानदान में, हमारे घरों में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जिस तरह पहले हमारे सरों पे शफ़क़त का हाथ फेरते हैं, वो फेरते रहेंगे। मैं ख़ास तौर पे मोहतरम जनाब असद उमर साहब का, मैंने 5 साल इनके साथ असम्बली में गुजारे हैं। जब भी इन्होंने गुफ्तगू की, कईम गुफ्तगू की, दलाइल की गुफ्तगू की, मुतासर करने वाली गुफ्तगू की। आज ये हमारे यहाँ आए, हम अपना दिल आपके रास्ते में बिछाते हैं। वो जो है ना, फवाद आया सवाद आया, वो भी इस सारे अमल में
बराबर के शरीक हैं। मेरा जिस पार्टी से ताल्लुक रहा है, मेरा अच्छा वक्त गुजरा है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये हो गया वो हो गया। मैं अब दुआ ये करता हूँ कि मेरा अगला सफर भी जिंदगी का और सियासत का अच्छे अंदाज में गुजरे, कि जाते हुए कोई शिकायत न करे। वो हमारे मोहतरम आमिर कियानी साहब तशरीफ फरमाए, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ, और बेशुमार और हमारे सैयद पीरजादा साहब तशरीफ फरमाए जी बंगाली शरीफ, मैं उनके लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ जो तवक्कुआत आपकी हैं हमसे, हम उसको पूरा कर सकें। आपका सबका बहुत शुक्रिया। दुआ, दवा, इख्तिताम नूर कादरी गुरेज साहब, एक बात भी बताइएगा, आप लोगों ने जितनी जद्दोजहद इस मुल्क में इलेक्शन के लिए की और आप लोग कर रहे हैं, उसी शिद्दत से तमाम जमहूरी ताकतें उसको रोक रही हैं और उनके खैर खाल भी नहीं चाहती, गैर जमहूरी और जमहूरी जो पीडीएम की जो भी है। तो अब जो है आपने 2 असेंबली भी तहलील कर दी है, लेकिन एक मखसूस एजेंडे के जरिए मखसूस दानिश्वर एक चीज़ फैला रहे हैं कि हो सकता है अब इलेक्शन ना हो, ये इलेक्शन जनरल इलेक्शन के साथ हो जाएं, ये इलेक्शन कौमी के साथ हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाए, मुल्क में एमरजेंसी लग जाए। इन हालात में फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी? देखिए, क्या सराइयाँ तो हैं और चलती रहेंगी, लेकिन देखने की बात यह है आइन क्या कहता है और मुल्क की जरूरियात क्या है। आइन कहता है जब 2 असेंबलियां आइनी तकाजों को पुरकार लाते हुए तहलील हुई तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात, 90 दिन हद है, उससे पहले भी हो सकते हैं, 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाब करवाना लाजिम है। और अगर 90 दिन के अंदर नहीं कराते तो ये आइन शिकनी होगी, नंबर 1। अब जैसे कि पहले कहा गया 2 असेंबलियां तहलील हो गई, कौमी असेंबली की एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मुस्तफी हो गए और बलूचिस्तान और सिंध की असेंबलियों से जब तहरीके इंसाफ के साहिबान और मेंबरान अलहदा होते हैं तो 64% मुल्क की सीटें खाली हो जाती हैं। जब 64% मुल्क की सीटें खाली हो जाएं और मईशत का ये हाल हो तो मंतकी तकाजा ये है कि जनरल इलेक्शन इनके साथ करवा दिए जाएं। और हमारा पहले दिन से ये मुतालबा रहा है कि मुल्क की जरूरत यही है कि फिल फॉर इलेक्शन करवा दिए जाएं। 71% लोगों की यही तवक्को है और जो एक लेटेस्ट ओपिनियन पोल है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान के 71% अवाम फौरी इलेक्शन का मुतालबा और तकाजा कर रहे हैं। जो भी इसके रास्ते में रुकावट बनेगा वो मुल्क को मिल्लत की खिदमत नहीं कर रहा, वो मईशत को मजीद बुरानी कैफियत की तरफ धकेल रहा है और वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा। कराची जैसे इलेक्शन अगर हो तो क्या होगा? कराची जैसे इलेक्शन अगर मुल्क में होते हैं तो उसके नतायज आपके सामने हैं। वो अवाम जिस इलेक्शन को कबूल नहीं करेगी उस इलेक्शन की और उस इलेक्शन की वो वक़्त नहीं रहेगी। पाकिस्तान की साख, जमहूरी अमल की साख मुतासिर होगी। आज आप देखिए हुकूमत के जो हलीफ हैं, हमें छोड़िए, तहरीक इंसाफ तो एक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है और हम अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। हुकूमत की हलीफ जमात MQM पाकिस्तान ने भी कराची के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। आपने पहले किया था, 1 रोज पहले, 2 रोज पहले तहरीक इंसाफ ने, असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस सारे अमल को मुस्तरद किया था। आज हुकूमत के हलीफ वही कह रहे हैं। आज जो जमात इस्लामी की वहां लीडरशिप उभरी है वो भी पीपल्स पार्टी के साए से अपने आप को बचाना चाहती है, क्योंकि अगर वो पीपल्स पार्टी के दामन से अपने आप को जोड़ती है तो जो उनका नारा है करप्शन फ्री पाकिस्तान का वो मुतासिर होता है, वो भी कतरा रहे हैं। तो अगर कराची जैसे इंतखाबात करवाए गए उसके मुल्क पर बड़े मनफी असरात होंगे, कौम कबूल नहीं करेगी। मत भूलिए कि 1977 में चंद सीटों में जब गड़बड़ हुई थी तो उसका रद्द-ए-अमल आपने देखा, लोग सड़कों पे आए, एहतजाज हुआ और एक एजिटेशन की कैफियत पैदा होगी। कराची में आज वही माहौल बन रहा है।
कराची में आज यही माहौल बन रहा है। अगर कराची के माहौल को आप पूरे मुल्क पर नाफिज करना चाहते हैं तो फिर ऐसे इलेक्शन करवाएं जिन पर सवालिया निशान हो। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार मौका दें। खान साहब ने कहा था कि जब नए इलेक्शन होंगे तो मैं अपने नजरियाती लोगों को ही टिकट दूंगा। अब इतनी बड़ी शख्सियत जो शामिल होने जा रही है तो क्या मकामी जो क़यादत है, आपके पुराने जो इस इलाके में काम करने वाले हैं, अब टिकट इन्हें मिलेगा तो क्या वो मायूस नहीं होंगे? दूसरा ये आप इलेक्टेबल्स को भी शामिल करने जा रहे हैं। पहली बात ये है कि पुरानी क़यादत जो है उससे मशावरत हुई है, उनको एतमाद में लिया गया है और वो यहां मौजूद है। आपने देखा कौन मौजूद नहीं है? अभी आपने देखा, और मैं पीर साहब की इजाजत से इस बात को खुशाइन समझता हूं कि पराचा साहबान भी आज आए और उन्होंने खुशामदीद कहा। उन्होंने खुशामदीद कहा। भलवाल के सदर और जितने हमारे पार्टी की तंजीम है वो सारी मौजूद है। जैसे कि असद उमर कह चुके और फवाद चौधरी साहब कह चुके, ये घराना जो है जो आज शामिल हो रहा है तहरीक इंसाफ में, वो जो मदीने की रियासत का हमारा फलसफा है उसके ऐन मुताबिक इनका ज़हन, इनकी सोच मिलती है। और ये इन्होंने तो सारी उम्र दीन की खिदमत की है ना। और जैसे कि आशिकान रसूल की सफ में खड़े आज इमरान खान फख्र महसूस करते हैं, इन्होंने तो उनकी अकीदत और गुलामी का झंडा अरसा दराज से उठाया हुआ है। तो इनकी सोच, तहरीक इंसाफ की सोच मिलती है और हम इनको वेलकम करते हैं। और इन्होंने इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। इंशाअल्लाह पार्टी की तंजीम और कारकुनान इन्हें दिल से कबूल करेंगे। भाईजान एक फ्लाइट है और असद उमर जी करे लास्ट जी। जमात इस्लामी को गैर मशरूत आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? दूसरा सवाल ये है कि आप क्योंकि दूसरी तरफ 17 जमातें गठी हैं, आप 4-5 जमातें गठी नहीं कर सकते जमात इस्लामी को साथ मिला। देखिए हम नजरियात को यकजा कर रहे हैं। जो हमारे नजरिए से मुंसलिक होगा, हमारी सफों में आएगा, हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे। और कराची के मामले पर मैं समझता हूँ असद पर आप जवाब दे देंगे। कराची का बता देता हूँ जी, कराची कुछ दर्जन सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर रीकाउंट मांगा गया है। उनके नताइज सामने जब आ जाएंगे, उन नताइज को देखने के बाद हम फैसला करेंगे कि किसी को सपोर्ट करना है या किसी और ने हमें सपोर्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आखिरी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले खान साहब ने जनाब शामूद कुरैशी साहब को और असद उमर साहब को, फवाद चौधरी साहब को, जनाब आमिर कियानी साहब को और मुझे हुक्म दिया कि आप जाएं और बेरा शरीफ हाजिर हों। खान साहब अपनी अलालत की वजह से और मारूजी हालात की वजह से तशरीफ नहीं ला सकते थे। हम यहाँ पे पीर साहब की इस फैसले के शुक्रिया के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुशमदीद के लिए आए हैं। मैं इमरान खान की तरफ से, अपनी पार्टी लीडरशिप जो मौजूद है इनकी तरफ से और जो मौजूद नहीं है उनकी तरफ से भी, जनाब मेरे मखदूम और मोहतरम क़िबला पीर अमीनुल हसनात शाह साहब को, जनाब हफीजुल बरकात शाह साहब को, जनाब मेजर इब्राहिम शाह साहब को, जनाब मोहसिन शाह साहब को, जनाब पीर फारूक शाह साहब को, इनके जुमला खानदान को और इस खानदान के तवस्सुत से जो हजारों उलमा और मशाइख इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए रियासत मदीना मुनव्वरा के साथ मिलेंगे और हमें इस फिक्र और सोच के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है। उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ करते कि अल्लाह ताला इस फैसले को बायस खैर और बरकत बनाए। जिस तरह इनके बुजुर्गों ने पाकिस्तान के क़याम के तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, अल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान की तहरीक में भी उनके इस किरदार